امریکی عدالت نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نااہل قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کیپٹل ہل پر حملے میں ملوث ہونے کی وجہ سے نااہل قرار پائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ 4 جنوری تک فیصلے کے خلاف کولوراڈو کی سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں۔ امریکی ریاست کولوراڈو کی سپریم کورٹ نے نااہلی قرار دے دی ہے۔ آپ کو بتائیں امریکی عدالت نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نااہل قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کیپٹل ہل پر حملے میں ملوث ہونے کی وجہ سے نااہل ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ 4 جنوری تک فیصلے کے خلاف کولوراڈو کی سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ امریکی عدالت نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نااہل قرار دے دیا۔ نیو یارک اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل میں غزہ میں امداد منتقلی سے متعلق قرارداد پر ووٹنگ دوسری بار ملتوی ہو گئی۔ امریکہ کی تیسری بار ویٹو ایکشن سے بچنے کے لیے ووٹنگ ملتوی ہوئی ہے۔ قرارداد میں سیز فائر کا لفظ حذف کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں سیکورٹی کونسل کی قرارداد پر ووٹنگ بدھ کے روز ہونے کا امکان ہے۔ نیو یارک اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل میں غزہ میں امداد منتقلی سے متعلق قرارداد پر ووٹنگ دوسری بار ملتوی ہو گئی۔ امریکہ کے تیسری بار ویٹو ایکشن سے بچنے کے لیے ووٹنگ ملتوی ہوئی ہے۔ قرارداد میں سیز فائر کا لفظ حذف کر دیا جائے۔ عالمی میڈیا کا یہ کہنا ہے سیکورٹی کونسل کی قرارداد پر ووٹنگ بدھ کے روز ہونے کا امکان ہے۔ اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل میں غزہ اور امداد منتقلی سے متعلق قرارداد پر ووٹنگ دوسری بار ملتوی۔ امریکہ کے تیسرے بار ویٹو ایکشن سے بچنے کے لیے ووٹنگ ملتوی ہوئی ہے۔ قرارداد میں سیز فائر کا لفظ حذف کر دیا جائے۔ امریکہ کا مطالبہ سامنے آیا۔ واشنگٹن حماس کے پاس اب بھی 8 امریکی شہری قید ہیں، یہ کہنا ہے ترجمان امریکی سلامتی کونسل کا۔ امریکہ بحیرہ احمر میں عالمی بیڑوں پر حوثی حملوں کو ہر وقت روکے گا۔ امریکہ اور اس کے اتحادی مل کر حوثی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، یہ کہنا ہے ترجمان امریکی سلامتی کونسل جان کربی کی نیوز کانفرنس۔ حماس کے پاس اب بھی 8 امریکی شہری قید ہیں۔ امریکہ بحیرہ احمر میں عالمی بیڑوں پر حوثی حملوں کو ہر قیمت پر روکے گا۔ امریکہ اور اس کے اتحادی مل کر حوثی خطرے سے نپٹیں گے۔ ترجمان امریکی سلامتی کونسل جان کربی کی نیوز کانفرنس۔ وزیر خارجہ کا چینی ہم منصب وانگ یی سے رابطہ کیا گیا ہے۔ چین بحیرہ احمر میں عالمی شپنگ پر حوثی حملوں کو رکوانے میں تعمیری کردار ادا کرے۔ حوثی حملوں سے امریکہ اور چین کے مفادات کو خطرہ ہے۔ اینٹونی بلنکن کی ٹیلی فون پر گفتگو۔ اگر چین حوثیوں کے خلاف اقدامات کرے تو یہ مؤثر رہے گا۔ امریکی وزیر خارجہ کا چینی ہم منصب وانگ یی سے رابطہ اور بحیرہ احمر میں عالمی شپنگ پر حوثی حملوں کو رکوانے سے متعلق تعمیری کردار ادا کرنے پر زور دیا گیا۔ حوثی حملوں سے امریکہ اور چین کے مفادات کو خطرہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ نیب نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ تحائف کا ریفرنس دائر کر دیا۔ ریفرنس کے مطابق ملزمان کو مختلف سربراہان مملکت سے 108 تحائف ملے، جن میں سے 58 تحائف انہوں نے پاس رکھ لیے۔ مالیت بھی کم بتائی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے مختلف سربراہان مملکت سے ملنے والے 58 تحائف اپنے پاس رکھ لیے۔ بیرون ملک سے ملنے والے تحائف کی مالیت بھی کم ظاہر کی گئی۔ نیب نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ تحائف کا ریفرنس دائر کر دیا۔ ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ وزارت عظمیٰ کے دوران بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو مختلف سربراہان مملکت کی جانب سے کل 108 تحائف ملے۔ ملزمان نے سعودی ولی عہد سے ملنے والا جیولری سیٹ بھی کم مالیت پر ظاہر کیا۔ بشرا بی بی نے یہ جیولری سیٹ توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کرایا۔ ملزمان ان تحائف کو توشہ خانہ میں جمع کرانے کے پابند تھے۔ احتساب عدالت کے رجسٹرار آفس کی جانب سے جانچ پڑتال کے بعد ریفرنس سماعت کے لیے ایڈمنسٹریٹو جج محمد بشیر کے پاس بھیجا جائے گا۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی میں شو کاز نوٹس پر سماعت مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر سینیٹر علی ظفر نے سوالات کے جوابات جمع کرا دیے۔ کمیشن سے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی استدعا کر دی۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی شو کاز نوٹس پر سماعت مکمل۔ الیکشن کمیشن کے 5 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے سوال نامے کے جوابات جمع کرا دیے۔ دوران سماعت پی ٹی آئی وکیل علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سوال نامہ ایک مذاق ہے جس میں عجیب سوالات پوچھے گئے۔ کیا الیکشن کمیشن نے کسی دوسری سیاسی جماعت سے پوچھا کہ زورانہ کب کیا تو چائے کب پی؟ علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر انتخابات کرائے۔ فارم 65 پر چیئرمین کے دستخط پر اعتراض عائد کیا گیا۔
जबकि शहबाज शरीफ समेत दीगर सरबराहान ने भी खुद दस्तखत किए। सवाल किया गया कि इंतखाबात प्री मैनेज थे। क्या इलेक्शन कमीशन का अफसर ऐसा सवाल पूछ सकता है? ये इल्जाम सिर्फ फरीक ही लगा सकता है। पूछा गया कि तशहीर नहीं की तो क्या इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तशहीर कानूनी जरूरत है? ताहम मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया। टेक्निकल ग्राउंड पर कैसे किसी सियासी जमात से इंतखाबी निशान लिया जा सकता है? समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमाओं ने कहा कि सवाल है कि क्या बाकी पार्टियों से भी ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं? उम्मीद है कमीशन इंसाफ के तकाजे पूरे करेगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का इलेक्शन सिंबल डिले करना, 2 दिन रह गए हैं, शायद 1 दिन रह गया है नॉमिनेशन पेपर्स में, उसको डिले करना कि हमें सिंबल ना मिले, इन टेक्निकल सवालों के वजह से मेरा ख्याल है जमहूरियत को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। पीटीआई वकील ने इस्तदा की इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका है, लिहाजा हमें सर्टिफिकेट जारी किया जाए, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि हमें एहसास है, जल्द फैसला करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन इंतखाबी निशान केस में 21 दिसंबर तक हतमी फैसले से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने आज जवाब जमा किया है। मजीद जानेंगे पेशावर से आमिर जमील की इस रिपोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान बेट से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस MS अतीक शाह और जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने की। इलेक्शन कमीशन के वकील और पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान अदालत में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने आज जवाब जमा किया है, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमें उसकी कापी फराहम करे। जस्टिस SM अतीक शाह का कहना था कि ये आपका कानूनी हक है, आपको कापी फराहम करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर और इंतजामिया गैर जानिबदार नहीं हैं। अगर आप डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को लगाएं तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का या वफाकी हुकूमतों का हिस्सा है। हम समझते ये तो केयर टेकर सेटअप गुज़श्ता PDM हुकूमत की एक एक्सटेंशन है। ये इस किस्म की फेयर नहीं रही है जिस तरीके से आईन और कानून का तकाजा है। पेशावर हाई कोर्ट ने दलाइल के बाद इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ अबूरी रिलीफ में तौसीह करते हुए इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन इंतखाबी निशान केस में 21 दिसंबर तक खत्मी फैसले से रोक दिया। फैजाबाद धरना कमीशन में साबिक ISI चीफ फैज हमीद को बुलाने की तैयारियां। कमीशन के अरकान ने साबिक ISI चीफ के लिए सवालनामा तैयार कर लिया। कमीशन रवा हफ्ते के आखिर तक फैज हमीद को आइंदा हफ्ते तलबी का नोटिस जारी कर सकता है। कमीशन में IB अफसर साजिद कियानी ने 3 घंटे तवील बयान रिकॉर्ड करवा दिया। साजिद कियानी 2017 में SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद थे। फैजाबाद धरना कमीशन में साबिक ISI चीफ फैज हमीद को बुलाने की तैयारियां। कमीशन के अरकान ने साबिक ISI चीफ के लिए सवालनामा तैयार कर लिया। कमीशन रवा हफ्ते के आखिर तक फैज हमीद को आइंदा हफ्ते तलबी का नोटिस जारी कर सकता है। कमीशन में IB अफसर साजिद कियानी ने 3 घंटे तवील बयान रिकॉर्ड करा दिया। साजिद कियानी 2017 में SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद थे। बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। जब आइन शिकनी होती है तो उसकी मजम्मत करने की बजाय आइन शिकन को हार पहनाए जाते हैं। खिलाफ कानून फैसलों को दुरुस्त करार दिया जाता है। उनका कहना था कि 2018 के इंतखाबात में एंट्री नहीं की गई। 4 वोटों की बर्तरी से सिलेक्टेड को वज़ीर आज़म बनाया गया। उन्हें अल्लाह का खौफ नहीं, रियासत मदीना कहते थे और करते क्या थे। बानी PTI के आते ही डॉलर को पर लग गए। कौम को तब्दीली आने का झूठा ख्वाब दिखाया गया। वो पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब कर रहे थे। आइन टूटता है तो जजेस आगे बढ़ के हार पहनाते हैं आइन तोड़ने वाले को, उसको अपना लेजिटिमेसी भी देते हैं। उसको कहते हैं 3 साल तुम आइन के साथ जो मर्जी सलूक करो, 3 साल की इजाज़त। इस वक्त जो ये सूरत हाल जो बन चुकी है उसकी वजूहात क्या है भाई? ये हैं वजूहात, ये है वजूहात। आइन को हम खुद तोड़वाते हैं, उसके ऊपर मोहर लगाते हैं और फिर उसके बाद पार्लियामेंट टूटती है तो कहने के बिल्कुल ठीक हुआ है। वज़ीर आज़म को जेल डालते हैं, बिल्कुल ठीक हुआ है जी। बेटे से तनख्वाह न ली, इसको निकाल दिया, बिल्कुल सही किया है। सारे काम हमने खुद ख़राब किए हैं, अपने मुल्क को खुद आज इस नुक्ते पे हम लेके आए हैं।
किसी और का कसूर नहीं है। जो कहते नहीं थकते थे कि पाकिस्तान के सब्ज़ झंडे की हम इज़्ज़त करवाएंगे, सब्ज़ पासपोर्ट की इज़्ज़त करवाएंगे, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, तब्दीली आएगी, वो सब कुछ एक झूठा ख्वाब था, वो सब्ज़ बाग था। और फिर अफसोस ये है कि उसके बावजूद जीत नहीं रहे थे इलेक्शनों में, बेतहाशा इंजीनियरिंग की गई, बंदों को पार्टियां तब्दील करवाई गई, हमारी पार्टी से बंदे लेके उनकी पार्टी में डाल दिए गए, लेकिन फिर भी जब नहीं जीते तो आरटीएस बंद करके इलेक्शन को उनको रोक कर जितवाना पड़ा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, कहा जाता है कि अदालत में इंसाफ के लिए आया जाता है। इतने बरसों के बाद कायदे अवाम जुल्फकार अली भुट्टो को इंसाफ दिया जाएगा। यहाँ कोई अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है तो कोई टाइगर, और मैं ये चीज़ें ख़त्म करना चाहता हूँ। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाईकोर्ट में आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कहा जाता है कि अदालत में इंसाफ के लिए आया जाता है और इतने बरस बाद कायदे अवाम को इंसाफ दिया जाएगा। तमाम जजेस का शुक्रगुजार हूं कि सदर जरदारी का रेफरेंस जो 12 साल पहले भेजा गया था, आज उनका हियरिंग्स चल रहे हैं और उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह ताला इतने सालों बाद कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था, जब तक हम मुल्क की बेहतरी के लिए सियासत करने का फैसला नहीं करेंगे तब तक हम अपनी आवाम के लिए बेहतरी नहीं ला सकेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था, यहाँ कोई अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है तो कोई टाइगर, और मैं ये चीजें खत्म करना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी फैसल टाउन में पीपी रहनुमा नवीद चौधरी की रिहाइशगाह पहुंचे और उनकी अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत की। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि दागदार और गैर दागदार की बातें 70 की दहाई से चल रही हैं। जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिली वो अपने दागों को लेकर नहीं चले तो हम कौन सा लेकर जाएंगे। दाग ये होता है कि हम इलेक्शन ना कराते। हम कॉन्फ्रेंस समझते हैं कि तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना वो उनकी निगाह से देखी जाएं और उसको इल्हामी दर्जा दिया जाए, जो हम देने को तैयार नहीं हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिला, वो अपने दागों को लेके नहीं चले तो हम कौन सा दाग लेके जाएंगे। और कौन सा दाग होता है? दाग ये होता कि अगर हम इलेक्शन ना कराते। इलेक्शन कराने के बाद ना ये लफ्ज़ दाग मेरे ख्याल में ज़रा नामुनासिब है। हम इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको कंडक्ट करेगा। कोई मखसूस सियासी जमात एक दावा लेकर या कोई और दावा लेकर आए, दावे किए जा सकते हैं, वो लोगों को डिसाइड करने दें कि उस दावे में कितना वज़न है कितना वज़न नहीं है। बाज़ औक़ात एक सच्चा बयानिया होता है और बाज़ औक़ात एक सच्चा बयानिया नहीं भी होता है। सुप्रीम कोर्ट आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर करवाने के लिए पुरअज़्म। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों से मुतालिक फैसला मुअत्तल कर दिया। PP 12 में हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्त भी खारिज। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने दरख्वास्त गुजार के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि आम इंतखाबात की तारीख आना मामूली बात नहीं, तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू समात। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों से मुतालिक फैसला मुअत्तल कर दिया। PP 12 में हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्त भी खारिज। इलेक्शन कमीशन ने वापस लिए गए नोटिफिकेशंस सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिए। इंतखाबी अमल किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के बड़े रिमार्क्स का बंदियों से मुतालिक मुतादिद दरखास्तों पर हुक्म इम्तना जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुक्मनामे से तमाम दरखास्त गुजारों की अपीलों पर असर नहीं पड़ेगा। आम इंतखाबात के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक अपीलें दोबारा सुनेंगे। इंतखाबात में ताखीर किसी सूरत कबूल नहीं। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा कि नक्शे देखने का काम हाई कोर्ट का नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का है। अकेला आपका प्रॉब्लम नहीं, हर हल्के में ये मसला होगा। अगर एक हल्के में करेंगे तो फिर सबको हल करना पड़ेगा। हर पार्टी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हल्का बंदियाँ चाहती है। हम इंतखाबात में ताखीर का कोई चांस नहीं लेना चाहते। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा करने से इलेक्शन मामलात मुकम्मल डीरेल हो
सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इंतखाबात ना होते तो दरमियान में मुदाखलत ना करते। अदालत एक तरीक़ाकार मुरतब कर रही है जिससे किसी की हक तलफी ना हो। हम अब मामलात को आम इंतखाबात के बाद दोबारा टेकअप करेंगे। अदालत दरख्वास्त गुजारों का हक महफूज रख रही है। सेंटर का भी दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दौरा अमेरिका के दौरान अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक से मुलाकात की। सेंट्रल कमांड के हेडक्वार्टर्स टिम्बाबे फ्लोरिडा के दौरे के दौरान होने वाली इस मुलाकात के दौरान मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर बिलखसूस इलाकाई सलामती के मामलात और बाहमी फौजी तावन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जानिब से मुश्तरका तरबियत के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर सेंटकॉम और पाक फौज के दरमियान तरबियती तबादलों को बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया।